Just give me a second. Usually what happens that whenever we do this kind of a thing, that we eat less and we work out more, so on that time we believe that the fat losing is some kind of a willpower, and we need to do, we have to do, and there is some kind of a guilt which you have done in your life by having the tummy or fat into your life. But the fact is something different. The fact is this, that it is not your fault. So the old belief, what it say, that first of all, how anybody starts this thing is something like this, that they what they do, that usually they go in a crash dieting and they do a hard workout, and after some time, after a 1 month, 2 month, 3 months, what they feel, that they feel very down and very deprived of the food. That's why now they quit their dieting, and they reach back from the where they have started, but now it has become more worse. So, and that's why there is no consistency into them. That's why now they blame themselves, that why I'm not able to achieve my fitness, it is my fault. And that's why it usually harm their self image also. So that's why so many people who has the problem of obesity and overweight, they have some issues of poor self image also. But today I really want to tell to you one thing, that it is not your fault. How it is not your fault, I will tell to you. Just give me I will tell to you that why it is not your fault. So first of all, you need to understand this thing, that it is not only eating less, and it is not only about the eating less food and doing hard workout, but our body is very smart. And how does our body work? That our body usually gives instruction to our body, that now the food is less. That's why now utilize that very food into less energy. सो अर्लियर व्हाट द थिंग्स यूज्ड टू हैपन, कि हमारी जो बॉडी थी उसमें कम खाना आ रहा था, मगर वो एनर्जी ज्यादा कर रही थी, इसलिए हम शुरुआत में पतले हुए. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द बॉडी हैज बिकम स्मार्ट, एंड राइट नाउ द बॉडी इज डूइंग द वन थिंग, इट इज टेलिंग टू अस दैट नाउ द फूड इज लेस, दैट्स व्हेन एनर्जी कंजप्शन इज आल्सो लेस. बॉडी ने अपनी एनर्जी को लेने का तरीका जो है उसको भी स्लो कर दिया है. दैट्स व्हाई वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्लो मेटाबॉलिज्म. So that's why our body, usually you must have seen those people that they eat as much as they want, but still they don't gain any kind of a fat into their body. So basically what this thing and why this thing happens, then today I will be clarifying this thing to you, that the obesity and the fat production is a condition of a body which is maintained by our mind and our hormones. So what are the hormones which are so much usually where our hormones are so much impactful on our body? So let's take an example of insulin. It is the number one hormone which causes a person to gain fat. If your body is having a insulin problem, then it means that your body is not responding towards the fat. कैसे इंसुलिन काम करता है? जैसे कि अगर आपके कान में कोई धीमे से कोई बोलता है तो आपको सुनाई दे देता है. बट अगर जब आपको कम सुनाई देता है ज्यादा तेज म्यूजिक होने की वजह से, तो किसी को चिल्ला के आपके साथ में सामने बोलना पड़ता है. उसी तरीके से जो इंसुलिन है वो काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का, सेल को इंस्ट्रक्ट करने का कि कार्बोहाइड्रेट आ गए हैं, बट आपने इतने कार्ब खाए हैं, इतने ज्यादा शुगर, इतना ज्यादा मीठा, इतना ज्यादा जंक फूड खाया है, कि अब जो है इंसुलिन ज्यादा बनने लग गया है बॉडी के अंदर, जिस वजह से बॉडी ने उसके प्रति रेजिस्टेंस कर दिया है, तो इंसुलिन को ज्यादा चार से काम करना पड़ता है. सो दिस इज हाउ इंसुलिन इज वर्किंग. और इंसुलिन जैसे ही बॉडी में ज्यादा होता है, ऑन दैट टाइम बॉडी इज इन स्टारवेशन मोड एंड बॉडी स्टार्ट preserving its fat. Now the second thing which you need to know about the thyroid. Thyroid gland is a gland which is into your neck, and those people who has the thyroid problem, on that time the gland is not working properly, and it is very much very it plays a very vital role in the metabolism. So those people who are facing the problem of thyroid, on that time they also face the issue of slow metabolism. That's why their body carries the fat into it. That's another hormone is a ghrelin. जब भी कभी हम लोग क्रैश डाइट्स करते हैं तो हमारी भूख बहुत बढ़ जाती है, और उसको ग्रेलिन हार्मोन बोला जाता है. जब ये ग्रेलिन हार्मोन हमारे ऊपर हावी होता है, तो इस वजह से हमको कुछ भी मिल जाए मगर हम वो खा लेते हैं, चाहे हमको ये नहीं पता होता उसके बाद में कि अच्छा है या बुरा है. जस्ट बिकॉज ग्रेलिन हार्मोन हमारे दिमाग को इंस्ट्रक्ट कर रहा है
कि आपको जो है खाना खाना ही खाना है। कॉर्टिसोल, जब भी कभी हम लोग हार्ड वर्कआउट्स करते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, किसी सेल्स प्रेशर में होते हैं, किसी ऑफिस में किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उस वक्त पे एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। वेन एवर देर इज अ कॉर्टिसोल हार्मोन इन टू आवर बॉडी नीड्स अ कंटिन्यूअस ग्लूकोज फॉर एनर्जी। एंड अगर ग्लूकोज नहीं होता है तो बॉडी कॉर्टिसोल ज्यादा होने की वजह से हमारे प्रोटीन स्टोरेज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लग जाती है। सो दैट्स व्हाई अगेन देयर इज मोर ग्लूकोज, अगेन द पॉइंट कम ऑन टू द इंसुलिन। अगेन इंसुलिन ज्यादा बनता है और बॉडी अगेन इट इज ऑन स्टारवेशन मोड। सो नाउ द क्वेश्चन arises that what to do. The only simple things which you need to do as of now, that you need to understand the three concept. The number one concept is the fasting. There are so many myths because of the YouTube that you need to do the 16 or 8 kind of a fasting in your life. But the fact is something different. Those people who do their workout in the morning, they should not do their fasting workouts. Why? बिकॉज तभी उनकी फास्टिंग कभी रेगुलर नहीं हो पाती है। और जो लोग शाम के समय पर वर्कआउट करते हैं, वो चाहे तो अपने सुबह के मील्स को स्किप कर सकते हैं। सो जो लोग सुबह के वक्त पे वर्कआउट करते हैं, वो शेड्यूल बांध सकते हैं अपना कि उनका लास्ट मील 5 पीएम पे या 6 पीएम पे होगा, और उसके बाद में मॉर्निंग में उठने के बाद के अंदर वो रेगुलर जो अपना खाना लेते हैं वो ले सकते हैं। फास्टिंग के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है, फास्टिंग के अंदर कि ऐसे रिसर्चेस की गई हैं कि फास्टिंग के थ्रू फर्क बहुत पड़ता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मैं फास्टिंग करता हूं या नहीं करता हूं, सो मेरा आंसर रहेगा कि जब भी कभी मैं अपनी फैट लॉस की जर्नी में होता हूं, तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे की विंडो तक ही खाना खाता हूं। यानी कि जो मेरा मील होता है वो 7 से 7:30 बजे के बीच में अपने डिनर को मैं फिनिश कर लेता हूं, क्योंकि मुझे भूख भी काफी लग रही होती है और मेरा खाना भी कम होता है, और मुझे उस वक्त पे खाने के बाद के अंदर सुबह के वक्त में अच्छा महसूस होता है एट द टाइम ऑफ माई वेट लॉस ओनली। अदरवाइज जो जब भी कभी मैं अपनी मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम पे होता हूँ, या जब मैं डाइटिंग नहीं कर रहा होता हूँ, या जब भी कभी मैं लो कैलोरी खाना नहीं खा रहा होता हूँ, तो यूजली तौर पे 8:30 से 9 बजे के बीच में मेरा खाना हो जाता है। ऑलराइट, सो फास्टिंग इज ए वेरी गुड थिंग। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, मैं भी अभी काफी रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। बट अभी तक मेरी जो रिसर्च, जो मैं अपने क्लाइंट्स को जितनी भी सब चीजें देता हूँ, मेरा उन लोगों को सिर्फ यही कहना होता है कि 7 बजे का जो प्रोटोकॉल है उसको आप निभाइए तो अच्छा रहेगा। अपनी विंडो को 10 to 7, 9 to 7, 8 to 7 तक रखें, तो उस वक्त में भी आपकी बॉडी जो है फास्टिंग के लिए अच्छा काम करेगी। सेकेंड थिंग होती है वेट लिफ्टिंग। वेन एवर वी आर पंपिंग द वेट्स थ्रू आवर बॉडी वेट और थ्रू द आयरन वेट, ऑन दैट टाइम आवर बॉडी रिक्वायर्स सो मच ग्लूकोज, एंड दैट्स वाई अगर सारा ग्लूकोज जब बॉडी के अंदर से अच्छी तरीके से यूज होने लग जाता है, तो बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल जो है वो कम हो जाता है। ऑलराइट, तो वेट लिफ्टिंग के वक्त पे ऐसा काफी बार देखा गया है कि वेट लिफ्टिंग के वक्त पे बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और जो लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं उनकी जो फिटनेस होती है वो भी टेम्पररी होती है, यानी कि वो पुश नहीं करते हैं अपने आप को। तो सो वेट लिफ्टिंग के ऊपर जो है आपको सोचने की जरूरत है। वेट लिफ्टिंग भी टूल्स है, इसका एक कला है, और यही सब चीजें जो है मैं अपने प्रोग्राम्स में सिखाता हूं कि कैसे बॉडी वेट के थ्रू आप अपने वेट को कम करते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्लीप। अगर आप अच्छे से नहीं सोएंगे तो आपका हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, ग्रेलिन बढ़ जाएगा। तब भी आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी हम अच्छे से नहीं सोते हैं, तो अगले दिन पे हमको भूख ज्यादा लगती है, और भूख ज्यादा इन दोनों हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से अगर भूख ज्यादा लगती है आपको, तो आप खाएंगे ज्यादा, और अगेन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका चालू हो जाएगा। इसीलिए स्पेसिफिकली अगर आप अपने फैट लॉस की जर्नी के अंदर हैं, तो आई वांट टू सजेस्ट टू यू दैट स्लीप बाय 10 PM एनी हाउ। Friends, these all are the some of the things I also do all these things at the time of my weight loss journey, and I suggest to all of you also to do these things at your fat loss journey. So don't push yourself any much hard. Try to understand this thing that your fat is just not because of it is your fault. It can be because of the hormonal disbalance, and you need a specific diet plans, you need a some professional guidance that how to cure this problem. Friends, if you are connecting with me, then feel free to contact me. I would love to give you assistance, and I would love to help you out. If you want to ask anything, then feel free to ask any questions in the comment. I would love to help you while giving you answer on your comments itself only. This is Bhupendra signing out for now, and I know that you all can do it.
You all just need to know your fitness and be happy without any reason, and stay safe, stay at home.